Hello everyone. We are starting with chapter number 15, Plant Growth and Development. This is the first video of the chapter, class 11th, Biology. In this video, we are going to cover the topics plant growth, then differentiation, dedifferentiation and redifferentiation in plants. First of all, let us see what is development. Development is the sum of two processes. Two processes are involved in the development. One, growth, and second, differentiation. And to begin with, it is essential to know that the development of mature plant takes place from a zygote, and as a result, a complex body organization is formed. Let us see. There is a zygote, which is also called as fertilized eggs, and all the plant cells are descendants of this zygote. And zygote develop into mature plant by two processes, growth and differentiation. And as a result, roots, leaves, branches, flowers, fruits and seeds are formed, and then they eventually die. See the diagram. Starting from the zygote will change into two cell stage. Then 8-celled embryo will form, then globular embryo, then heart-shaped embryo and torpedo embryo, and then a mature plant will form. By these two processes, growth and differentiation. Let us see what is plant growth. Growth is an irreversible permanent increase in size of an organ or its part or an individual cell. It is the irreversible change. What do you mean by irreversible change? जो एक बार हो गया, जो एक बार बन गया, उसको वापस नहीं किया जा सकता. So growth is an irreversible change. Okay? और इसमें क्या involved होता है? It involves metabolic processes and also it consumes energy. So growth is accompanied by anabolic and catabolic processes. Anabolic means synthesis of compounds, catabolic means breakdown of compounds. So growth include both these processes. Clear? Example of the growth is expansion of leaf. Expansion of leaves is an example of growth. But what happens if you dip a bark of a tree into water? It swells up. Is it a growth? No, it is not a growth. Because it never includes metabolic processes. Means कोई anabolism नहीं हो रहा, कोई catabolism नहीं हो रहा. Okay, so this is not the growth. So example of growth is expansion of leaf, where the different processes are taking place, anabolic and catabolic, and also consuming the energy. Okay. Now, plant growth generally indeterminate होती है. What do you mean by indeterminate? Means never stops or never terminated. Plant growth continuously होती है throughout life because of the presence of meristems. And meristems present कहाँ होते हैं? You can see the diagram. They are present at the root tip and at the shoot tip. Shoot tip पर जो meristem है, it is called shoot apical meristem, and root tip पर जो meristem है, they are called as root apical meristem. And meristematic cells have the capacity to divide and self-perpetuate, means they are capable of renewing themselves. Okay. And moreover, the plant growth is open type. Open form of growth is there in the plant. What do you mean by this? Means new cells are always added to the plant by activity of the meristems. So meristems जो है plant की body में new cells regularly add करते रहते हैं. That's why the plant growth is open type. Clear? Now, plant growth is of two types, primary growth and secondary growth. Let us see first primary growth. It occurs due to root apical meristem. You can see the diagram number 1. Root की tip पर apical meristem present है. And also occur due to shoot apical meristem. Diagram number 2. Shoot की tip पर भी apical meristem present है. And what they cause? It causes the elongation of plants along their axis. शूट भी बढ़ता रहता है, रूट भी बढ़ता रहता है. सो इलोंगेशन होता रहता है शूट का भी और रूट का भी. सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ. यू कैन सी द डायग्राम नंबर 3 ऑल्सो. यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम अपर साइड पे दिखाया गया है, रूट एपिकल मेरिस्टम लोअर साइड पर दिखाया गया है, विच कीप ऑन फॉर्मिंग द न्यू सेल्स एंड विच कीप ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द शूट एंड लेंथ ऑफ द रूट. दिस इज द प्राइमरी growth. Come to the secondary growth.
कहाँ पाया जाता है? इट इज़ इन द जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स। और ये होता क्यों है? इट ऑकर्स ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। यू कैन सी द डायग्राम। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम देखिए, 2 नंबर पर वेस्कुलर कैम्बियम लिखा गया है एंड 3 पर कॉर्क कैम्बियम लिखा गया है। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द स्टेम, so these cause the increase in girth of the organs. So this is called as secondary growth. Growth is measurable. Growth को measure किया जा सकता है. How? At cellular level, growth occurs due to increase in the amount of protoplasm. जब amount protoplasm का बढ़ता है तो सेल की ग्रोथ होती है. तो इस प्रोटोप्लाज्म का जो इंक्रीज हुआ है उसको कैसे मेजर करें? बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट डायरेक्टली. सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय पैरामीटर्स लाइक इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर. यहाँ एग्जाम्पल देखिए कौन से दिए गए हैं. डायग्राम नंबर 1 पर देखिए सेल नंबर. यहाँ एग्जाम्पल है मेज रूट का. अ मेज रूट एपिकल मेरिस्टम can produce more than 17,500 new cells per hour. सेकेंड एग्जाम्पल है सेल साइज का. डायग्राम नंबर 2 वाटरमेलन का एग्जाम्पल है यहाँ. सेल इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स. सी द लेंथ. डायग्राम नंबर 3 ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब. यहाँ पॉलन ट्यूब दिखाया गया है जो पॉलन ग्रेन से निकलता है और इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमिट्स हैं और ये मेल गेमिट को लेकर ओव्यूल तक जाएगा. सो लेंथ इज इंक्रीजिंग, लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर द ग्रोथ. फोर्थ सरफेस एरिया. डायग्राम नंबर 4 ग्रोथ इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ. लीफ का साइज बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है. दिस इज हाउ वी कैन मेजर द ग्रोथ by the cell numbers, by the cell size, by the length, by the surface area, etc. Okay. Now, period of growth is generally divided into 3 phases. कौन कौन से 3 phases हैं growth के? Meristematic phase, elongation phase and maturation phase. And this can be understood by looking at root tips, जिसका डायग्राम आपके सामने है. Okay. Meristematic phase देखिए. It occurs in the meristems at the root apex and the shoot apex. Definitely meristematic phase वही होगा जहाँ पर meristematic cells होंगे और वो हैं root apex और shoot apex पर. यहाँ के cells की quality क्या है, क्या characteristic features हैं इन cells के? Cells in this region have rich protoplasm and large nuclei. Moreover, इनकी जो cell wall है वो कैसी है? Cell walls are primary, thin and cellulosic with abundant plasmodesmata. Plasmodesmata connections हैं between the 2 cells, जहाँ से एक सेल में से मटेरियल दूसरे सेल में जा सकता है. Okay, these are the characteristic features of the cells which are found in meristematic zone. Next come to elongation phase. ये कहाँ होता है? It occurs in cells proximal to meristematic zone. meristematic zone के next एरिया में elongation phase होता है. ओके और यहाँ के सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? सेल्स हैव इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन. वैक्यूल्स का साइज बढ़ जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन टेक प्लेस इन दिस एरिया. कम टू द नेक्स्ट फेज, मैचुरेशन फेज. ये कहाँ होता है? इट ऑकर्स इन द सेल्स फार्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स. एपेक्स से बहुत दूर हैं यहाँ ये वाले सेल्स एंड बट मोर प्रॉक्सिमल टू द इलोंगेशन फेज. और इन सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है द सेल्स अटेन मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन. सो दीज आर द 3 phases of growth in plants: meristematic phase, elongation phase and maturation phase. Come to the growth rate. What is it? It is the increased growth per unit time. जब हम रेट की बात करेंगे तो हम टाइम की बात करेंगे. क्लियर? सो इट इज़ इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम. और ग्रोथ रेट 2 तरीके से हो सकता है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अबाउट द अरिथमेटिक ग्रोथ. व्हाट हैपन्स इन दिस? इन दिस फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली one daughter cell continues to divide while the other differentiate and mature. इसको देखने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप डायग्राम देखिए. स्टार्टिंग फ्रॉम द डायग्राम नंबर 1 जहाँ पर 2 सेल दिखाए गए हैं 1 and 2. 1 लिखा गया है ब्लैक कलर से, 2 लिखा गया है पिंक कलर से. ओके
आउट ऑफ दीज टू सेल वन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा इनटू द पिंक सेल, और जो नंबर 1 सेल था जो ब्लैक कलर से लिखा गया था वो डिवाइड होगा इनटू 2 सेल्स. ओके, सो नंबर 2 सेल पिंक कलर का बन चुका है, पिंक कलर का 1 सेल. ओके, नाउ स्टार्ट विद द ब्लैक कलर 1 सेल, वो 2 में डिवाइड होगा, 1 and 2 अगेन. 2 विल लूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडिंग और कन्वर्ट इनटू 2 पिंक सेल. नंबर 2 पिंक सेल आ गया है हमारे पास, और फर्स्ट सेल जो था 1 सेल नंबर जो था वो फिर से डिवाइड होगा 2 सेल्स में, 1 and 2 अगेन, 1 ब्लैक 1 पिंक, और पिंक कलर से जो नंबर 2 लिखा हुआ है वो पिंक कलर के सेल में चेंज हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेज. सो एट द एंड यहाँ पर देखिए हमको 3 पिंक सेल मिल चुके हैं, मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड. So here you can see only one cell is dividing and the second cell is matured and differentiated. This type of growth is called as arithmetic growth. अगर इस ग्रोथ का ग्राफ हम प्लॉट करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? लीनियर ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा. यू कैन सी हेयर द ग्राफ डायग्राम. देखिए यहाँ पर ग्राफ का एक्स एक्सिस पर टाइम दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर हाइट ऑफ द प्लांट है, और स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, लीनियर ग्राफ हमको मिलेगा इन द अरिथमेटिक ग्रोथ. अरिथमेटिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकली क्या इक्वेशन है? यू कैन सी इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी. वॉट इज एल टी? इट इज अ लेंथ एट टाइम टी. ओके, एंड एल नॉट इज लेंथ एट टाइम 0, जहां से हमने स्टार्ट किया है नोट करना. लेंथ एट टाइम 0 इज एल नॉट, एंड आर इज अ ग्रोथ रेट और elongation पर यूनिट टाइम. Clear? So this is the mathematical expression of arithmetic growth. Come to geometrical growth. यहाँ पर क्या होता है? दोनों cells divide होते हैं, दोनों cells में mitotic division होता है. Okay, so here both daughter cells continue mitotic cell division. So यहाँ पर starting में देखिए 2 cells हैं, दोनों में mitosis होगा, 4 cells बनाएंगे, चारों में माइटोसिस होगा, 8 सेल्स बनेगा, 8 से 16 एंड 16 से 32, 32 से 64 लाइक दिस. सो इन मोस्ट सिस्टम जो इनिशियल ग्रोथ है वो स्लो होती है, क्योंकि 2 से 4 सेल्स बन रहे हैं, 4 से 8 बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनिशियल ग्रोथ है वो स्लो है. दिस फेज इज कॉल्ड एज लैग फेज. यू कैन सी द ग्राफ, यहाँ पर लैग फेज है बिल्कुल स्टार्टिंग में. ओके, बहुत स्लो ग्रोथ है, एंड देन इट इंक्रीजेज रैपिडली, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, 32 से 64 लाइक दिस. ओके, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज. यहाँ पर देखिए जो इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फेज, एंड देन आगे जाकर न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड हो जाएंगे, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा, और ये फेज कहलाएगा स्टेशनरी फेज. और जब इस ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है? सिग्मॉइड. टाइम इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वेट ऑफ द ऑर्गेन. टाइम एक्स एक्सिस पर है, वेट ऑफ द ऑर्गेन वाई एक्सिस पर है. सी द ग्राफ है, यहाँ पर देखिए टाइम एक्स एक्सिस पर है, साइज और वेट ऑफ द ऑर्गेन वाई एक्सिस पर है, और स्टार्टिंग में लैग फेज है, फिर ग्रोथ एकदम बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज, और लास्ट में फिर से वो स्लो डाउन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज. दिस इज द सिग्मॉइड कर्व, एंड अ सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरमेंट. और ये बहुत टिपिकल है फॉर ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का. W1 is equal to W naught e to the power RT. What is W1? It is final size. कुछ भी हो सकता है साइज, वेट, हाइट, नंबर एक्सेट्रा. W naught इनिशियल साइज एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड. R इज अ ग्रोथ रेट. ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अभी रिलेटिव ग्रोथ रेट होता क्या है? ओके, एंड T इज टाइम ऑफ ग्रोथ, and E is a base of natural logarithms. So this is the mathematical expression of geometrical growth. W1 is equal to W naught e to the power RT. Come to the growth rates. Relative growth rate की बात हम कर रहे हैं. It is also the measure of the ability of plant to produce new plant material. कितना नया plant material कोई भी plant बना सकता है. This is also called as relative growth rate. Hence, final size वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? It depends on the initial size W naught. Clear? Now,
क्वांटिटेटिव कंपैरिजन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। यहाँ पर क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ कैन बी मेड इन टू वेज, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। इनको हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट फॉर द लीफ ए, लीफ नंबर 1। यहाँ पर देखिए इनिशियल साइज कितना है लीफ का, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइनल साइज हो गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीफ ए का देखिए ध्यान से, इनिशियल साइज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइनल साइज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज, मीन्स 10 माइनस 5 विच कम आउट टू बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको अगर हम रेट में कन्वर्ट करते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। दिस इज अबाउट द लीफ ए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब इसका रिलेटिव ग्रोथ कैलकुलेट कीजिए। इट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और कंपेयर कीजिए इसको इनिशियल साइज से। सो एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन इनिशियल साइज, दिस इज 5 अपॉन 5 विच कम्स आउट टू बी 1। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 100%। रिलेटिव ग्रोथ इज 100% और रिलेटिव ग्रोथ रेट इज 100% पर यूनिट टाइम। क्लियर है ये? सो फॉर लीफ ए absolute growth rate is 5 centimeter square per unit time and absolute growth rate is 100% per unit time. Come to the leaf B. Initial size देखिए क्या है, 50 centimeter square, final size 55 centimeter square. Absolute growth, final size को फाइनल साइज में से माइनस करिए इनिशियल साइज, 55 माइनस 50 विच कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट कीजिए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, इट इज द 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। तो देखिए ए और बी का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों का सेम है। ओके, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। अब कैलकुलेट कीजिए रिलेटिव ग्रोथ ऑफ सेकेंड लीफ, इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन इनिशियल साइज। एब्सोल्यूट ग्रोथ है 5, इनिशियल साइज है 50, इट कम्स आउट टू बी 1/10 और परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 100 से, यू विल गेट 10%. So relative growth is 10% only in the second leaf and relative growth rate is 10% per unit time. Clear है? So absolute growth rate दोनों का सेम है, relative growth rate दोनों में डिफरेंट है. A लीफ में 100% relative growth rate है और B लीफ में 10% relative growth rate है. Clear? So see the definition. Absolute growth rate, it is the measurement and comparison of total growth per unit time. Okay, and relative growth rate, measurement of growth of the given system per unit time expressed on the common basis. Example, per unit initial parameter. Initial parameter से इसको compare करेंगे relative growth को. Clear? So these are two types of growth: absolute growth rate and relative growth rate. Come to the conditions which are necessary for growth. Water, oxygen, nutrients, temperature, light and gravity. These are required for the growth. Water. For cell enlargement, it is required for the cell enlargement, and also turgidity of the cells help in extension growth. Okay, and water provides medium for enzymatic activities needed for growth. वाटर को तो बहुत ज़रूरी है, सारी एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए वाटर रिक्वायर्ड है. ओके, सो दिस इज एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. सेकेंड, ऑक्सीजन. इट हेल्प्स टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी होता है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है. जब भी मेटाबॉलिज्म होता है, जब भी कैटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है, कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है. सो ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ. Third, nutrients. Macro and micro elements are needed for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy. Next, come to temperature. Plants के लिए optimum temperature बहुत ज़रूरी है ताकि growth maximum हो सके, और अगर कोई deviation होता है optimum temperature से, deviation from this range could be detrimental or to its survival. कि वो survive भी कर पाएगा plant या नहीं कर पाएगा,
ये अगर कोई डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो इट अफेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट ऑल्सो. नेक्स्ट कम टू लाइट एंड ग्रेविटी affects certain phases and stages of growth. Okay. Now come to differentiation, de-differentiation and redifferentiation. What is differentiation? It is a process in which मेरिस्टम सेल्स आपको पता है रूट टिप पर शूट टिप पर होते हैं, एंड कैम्बियम डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. यहाँ पर डायग्राम में देखिए मेरिस्मेटिक सेल्स है जो रूट सेल में चेंज हो रहा है, लीफ सेल में चेंज हो रहा है या सीव सेल में चेंज हो रहा है, मैच्योर हो गया है, परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट फंक्शंस. दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएशन. और इस डिफ्रेंशिएशन में होता क्या है? इन दिस सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस. सेल वॉल में चेंजेस आते हैं, प्रोटोप्लाज्म में चेंजेस आते हैं और सेल अपनी कैपेसिटी डिवीजन की लूज कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, loss of protoplasm to form trachary elements. They also develop very strong, elastic, lignocellulosic secondary cell walls to carry water to long distances even under extreme tensions. So these are the changes which take place in the trachary elements to conduct water to long distances in plants. Okay. Come to de-differentiation now. अंडर सर्टेन कंडीशंस लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल, जो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो चुका है सेल, वो अपनी कैपेसिटी को दोबारा रीगेन कर लेता है, दोबारा से वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डी डिफ्रेंशिएशन. यहाँ डायग्राम देखिए, वन सेल जो है डिवाइड इनटू टू, नंबर 2 पर देखिए लेबलिंग पर, एंड दीज आर ऑल्सो डिवाइडिंग फर्दर. बाद में जो थर्ड स्टेज पर जो सेल्स बने हुए हैं ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर चुके हैं, मैच्योर हो जाएंगे, बट समटाइम्स व्हाट हैपन अंडर सर्टेन कंडीशन ये दोबारा से अपनी फिर से प्रॉपर्टी वो रीगेन कर लेते हैं, दोबारा से डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं और डी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. एग्जाम्पल देखिए, डी डिफ्रेंशिएशन कहाँ हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स. कौन से मेरिस्टम्स बन रहे हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम है, जो ब्लैक कलर की लाइन से दिखाया गया है, दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. दोनों बनते हैं फ्रॉम डिफ्रेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स. ओके, पेरेन्काइमा सेल्स लूज कर जाते हैं अपना डिफ्रेंशिएशन और फिर से वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं एंड दे फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन. कम टू रीडिफ्रेंशिएशन. अब क्या होगा? डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कैन प्रोड्यूस सेल्स, वो फिर से नए सेल्स बनाएंगे जो डिफ्रेंशिएटेड हो गए थे सेल्स, एंड दैट अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड. फिर से वो जो नए सेल बने हैं वो फिर से अपनी लूज कर देंगे डिवाइड होने की कैपेसिटी को, मैच्योर हो जाएंगे और परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक फंक्शन. दिस इज कॉल्ड एज रीडिफ्रेंशिएशन. यू कैन सी द लेबलिंग नंबर 1. रीडिफ्रेंशिएशन इज शोन हेयर. ओके. Now, next important point about the plant growth is plant growth can be indeterminate or determinate. What is these two terms means? Indeterminate growth का मतलब है जो never stop और never terminated. डायग्राम देखिए, नंबर 1 डायग्राम इनडिटर्मिनेट दिखाया गया है स्टेम की ग्रोथ को. स्टेम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है क्योंकि उसके टिप के ऊपर कोई फ्लावर नहीं बना. ओके, सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. डिटर्मिनेट ग्रोथ जो फाइनाइट होती है, लाइक मेन स्टेम एंड्स विद द फ्लावर. अगर मेन स्टेम के लास्ट में फ्लावर आ जाता है, दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेट. इट इज फाइनाइट ग्रोथ. ओके. नाउ डिफ्रेंशिएशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफ्रेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन. व्हाट डू मीन बाय दिस? डिफ्रेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन बिकॉज cells or tissues arising out of the same meristms have different structures at maturity. Okay, final structure at maturity जो cells का होता है वो किसके ऊपर और डिपेंड करता है? It depend upon the location of the cell. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, cells position away from the root apical meristem. यहाँ पर apical meristem को दिखाया गया है रूट की, और उसकी जो दूर जो cells हैं away from this apical meristem जो cells हैं, they get differentiate as root cap cells. सी जो ग्रे कलर के नंबर 1 लेबलिंग पर दिखाए गए हैं. While
दोज पुश्ड टू द पेरिफेरी, लेकिन जो सेल्स पेरिफेरी पर पुश कर दिए जाते हैं दे टर्न इनटू, दे मैच्योर इनटू एपिडर्मिस। सी द पिंक कलर सेल्स जो हैं वो एपिडर्मिस बना रहे हैं। ओके, जो एपिकल मेरिस्टम से बाहर पेरिफेरी की तरफ जो पुश हो जाते हैं दे फॉर्म द एपिडर्मिस। क्लियर? So final structure at maturity of cell or tissue is also determined by the location of the cells. Clear? So that's all for today. I will continue the chapter in the next video. Subscribe the channel to get the information about my next video. Do the test which is given in the description box. Thank you. Thank you so much for staying with me.